Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Choices We Make. From your book We Learn SST Class 4 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1. Like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2. Carefully listen and watch video from start to end. Number 3. Find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The choices we make. There is difference between wants and needs. A want is something you would like to have but do not really need. For example, a pair of shoes you have seen and like it very much. You do not really need them because you already have shoes. Needs are things that are necessary. For example, a dictionary. वांट्स और नीड में ये डिफरेंस है कि वांट्स वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है, जो हमें पसंद आ रही होती है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत में नहीं होती। जैसे कि शूज़ का पेयर आपने देखा और आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया वांट। और नेसेसरी नीड्स जो होती हैं वो होती हैं नेसेसरी, यानी जो आपकी ज़रूरत में होती हैं, जैसे कि डिक्शनरी। Because of limited resources and unlimited wants, we have to choose between what we should have and what we cannot do live without. This is called economic choice. An economic choice has to be made before we have limited resources. In simple words, there is a limit to how much money we have. Because of limited resources, there is another thing we have to think about. This is called opportunity cost. This is what we have to do without in order to have something in its place. For example, if you decide to buy a dictionary instead of choice, then the shoes are your opportunity cost. लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से हमें दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी होती है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक चॉइस। इकोनॉमिक चॉइस हमें ये होती है कि लिमिटेड रिसोर्स होती हैं, आपके पास लिमिटेड अमाउंट होता है पैसों का, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डिक्शनरी ख़रीद ली है और शूज़ नहीं ख़रीदे तो शूज़ आपके हो गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन चूजिंग बिटवीन टू थिंग्स वी हैव टू डिसाइड विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड विल गिव अस मोर बेनिफिट। What if I buy shoes? I can wear them to parties and people will admire them. What if I buy the dictionary? I will not have to borrow my friend's dictionary all the time and will be able to use it at home as well. It will be mine forever and will help me learn meanings of new words. दो चीज़ों के बीच में हमें कोई ना कोई एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है कि एक कौन सी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने शूज़ ख़रीद लिए तो वो आप पार्टीज़ में पहनकर जा सकते हैं और लोग उसको पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपने डिक्शनरी खरीद ली तो बार बार आपको आपके फ्रेंड से डिक्शनरी नहीं मांगनी पड़ेगी। आपके घर में आप वो डिक्शनरी घर में भी लेके जा सकते हैं, वो डिक्शनरी हमेशा आपके पास होगी और उससे आप न्यू वर्ड्स भी सीख सकते हैं। What would you choose between the two things? The thing you do without would be opportunity cost. आप इन चीज़ों में से क्या लेंगे? अगर जो चीज़ आप नहीं लेंगे उसको हम opportunity cost कहेंगे। We have to make these choices very often. Should I spend my money on chips or biscuit? Should I spend my ED on toy or a book? ऐसी छोटी छोटी चॉइस हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करनी पड़ती है। क्या मुझे मेरे पैसे चिप्स पर खर्च करने चाहिए या बिस्किट पर खर्च करने चाहिए? क्या मुझे अपनी ईदी से टॉय ख़रीदना चाहिए या बुक ख़रीदनी चाहिए? The choice we make are not only for things. If you choose to study and miss your favorite TV show, you will get better marks in the exam. If you choose to enjoy yourself and have fun watching TV now, you will not have the pleasure of getting good marks. चॉइसेस जो है वो सिर्फ चीज़ें लेने में नहीं होती, ये आपकी दूसरी ज़िंदगी में भी यूज़ हो सकती है। जैसे कि आप चूज़ करें कि आपको पढ़ना है या अपना फेवरेट टीवी शो देखना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे और टीवी देखेंगे तो इससे आपको जो है मार्क्स बहुत ही बुरे आएंगे पेपर्स में।
In the way, government also have make economic choice. They have limited funds and have to think about the opportunity cost of every project they undertake. For example, the choice may have to be made between building or a park or a hospital. इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी चॉइस करनी पड़ती है, इकोनॉमिक चॉइस करनी पड़ती है। उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। अब उनको सोचना ये है कि वो अब इससे एक बिल्डिंग बनाएंगे या पार्क बनाएंगे या हॉस्पिटल बनाएंगे। ये इनकी इकोनॉमिक चॉइस हुई। Goods and services. Goods are objects that you can hold in your hands and use. Service is a work someone does for you. Goods वो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जो आप अपने पास अपने हाथ से यूज़ कर सकते हैं। सर्विस वो चीज़ होती है जो कोई और आपके लिए वो काम करे। Goods are objects that you can hold in your hand and use. They are items that we buy like food, books and clothes. गुड्स वो आइटम होते हैं जो हम ख़रीदते हैं और वो हम अपने हाथों से यूज़ करते हैं। इन आइटम में फूड, बुक्स और क्लोथ्स होते हैं। सर्विस इज़ अ वर्क समवन डज़ फॉर यू। फॉर एग्जांपल, हैविंग अ हेयर कट, हैविंग क्लोथ्स मेड, हैविंग हाउस पेंटेड। द हेयर ड्रेसर, टेलर एंड द पेंटर आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। सर्विस वो काम होता है जो दूसरा कोई आपके लिए करता है, जैसे आपके बाल काटना, आपके कपड़े सीना, आपके कपड़े धोना, आपके घर पेंट करना। ड्रेसर, टेलर, पेंटर ये सारे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। वी हैव टू कंसीडर मैनी थिंग्स वी बाई अ पर्टिकुलर आइटम। देयर आर सिमिलर आइटम अवेलेबल इन मार्केट। वी हैव टू मेक द बेस्ट चॉइस। ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती है। बहुत सारे सिमिलर आइटम मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये हमें चूज़ करने होते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ख़रीदनी है। वी शुड कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले। प्राइस यानी उसके पैसे, क्वांटिटी यानी उसकी तादाद, क्वालिटी यानी वो चीज़ कैसी है, वैल्यू फॉर मनी उसके पैसे इतने हैं जितने की वो चीज़ है, और उसका टेस्ट। जैसे कि बाज़ार में बहुत सारे किस्म के बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनी के बिस्किट होते हैं, अलग अलग पैकिंग में, अलग अलग प्राइजेस में होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग टेस्ट होता है। हमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा टेस्ट, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिमिलरली ऐसे डेंटिस्ट, हेयर ड्रेसर, उसकी भी हम लोग डेंटिस्ट होता है या बाल कटवाने होते हैं तो उसकी हम लोग प्राइस देखते हैं। प्राइस जो हमें सही लगती है उससे काम करवाते हैं। क्वालिटी और सर्विस, उसकी क्वालिटी, उसका काम करने का तरीका कैसे है वो देख के फिर हम लोग उसको चूज़ करते हैं। जब काम अच्छा होता है तो हम अक्सर पैसों पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अक्सर हम लोग अपने फ्रेंड्स या किसी जानने वाले से भी रिकमेंड करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा डेंटिस्ट, कौन सा हेयर ड्रेसर या कौन सा पेंटर अच्छा है। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KitKat डिजिटल लर्निंग। Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.